So hello everyone, welcome to my channel Rodi's The Legal World. So today we are doing assignment of copyright. Firstly we'll understand what exactly the copyright is, and then we would understand what is assignment of copyright. So there are three sections that we have to read on. Section 14 talks about the definition of Copyright Act 1957. Section 18 talks about the assignment of copyright, and section 19 talks about the modes of copyright. Modes of assignment of copyright. So let's understand this first. What is copyright exactly? So as per section 14, Copyright Act 1957 defines copyright as an exclusive right. Copyright क्या है? तो एक exclusive right है in respect of a work or any substantial part with regard to original. So basically what does it say? It says that copyright is nothing but is an exclusive right. Copyright is an exclusive right. So for example, you have made something, let's say you have made a song, let's say you may have come up with some artistic work. So this is something that exclusively made by you. So copyright is an exclusive right. That copyright gives you an exclusive right in respect of work or any substantial part with regard to original literary, dramatic, musical and artistic works, the cinematograph, films and sound recording. So basically it says that whatever you have made, cinematograph, films or sound recording or musical and artistic work, so you have registered yourself under the Copyright Act 1957 for that particular work. So that is giving you an exclusive right. So the right granted under section 14 of this act relate to reproduction, कि अगर ये song का reproduction हुआ तो मुझे क्या right होगा, because this song is being made by me. If somebody is reproducing the same thing, so what would be my benefit? So that's give you the right against your original work. That is copyright. So relate to the right granted under section 14 of the act relate to reproduction, publication, performance, production, translation, making film or sound recording, selling or giving on hire film or sound recording, communicate film or sound recording to public, and to make adaptation of copyright work. So this is the copyright. This is what exactly the copyright means. So I hope you understood this. Now we'll go down. I'll just explain this to you again, because we have to understand copyright first in order to understand what is assignment of copyright. So copyright, what does it say? That when we talk about copyright, it gives you an exclusive right against what, beta? So in respect of what? To work or any substantial part with regard to original literary, dramatic, musical and artistic works, the cinematograph, film and sound recording, anything that is exclusive, right? That is original. The right granted under section 14 of the act relate to what? तो राइट क्या मिला है कि कुछ रिप्रोडक्शन हुआ इस सॉन्ग का, या पब्लिकेशन हुआ इस पर्टिकुलर वर्क का, परफॉर्मेंस हुआ इस सॉन्ग का, प्रोडक्शन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, मेकिंग फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग, सेलिंग और गिविंग ऑन हायर फिल्म और साउंड रिकॉर्डिंग, communicate film or sound recording to public, and to make adaptation of copyright work. So that's copyright. Okay. ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज भी आता है, दैट भी अंडरस्टूड. सेक्शन 18 क्या बोल रहा है? दैट इज असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट. सेक्शन 18 सेज दैट असाइनमेंट मीन्स यू ट्रांसफरिंग योर राइट टू समबडी for consideration. So that's assignment of copyright. So where the owner of the copyright in an existing work, ओनर है कॉपीराइट का, या तो वो एग्जिस्टिंग वर्क का कॉपीराइट कर सकता है, या तो वो फ्यूचर वर्क का कॉपीराइट असाइन कर सकता है. सो ओनर ऑफ द कॉपीराइट इन एन एग्जिस्टिंग वर्क और इन फ्यूचर वर्क मे असाइन टू एनी पर्सन द कॉपीराइट ईदर होली और पार्टली. अब कॉपीराइट भी या तो पूरा दे सकता है तो पार्टली दे सकता है. लेट्स से ऑथर हैज़ मेड अ सॉन्ग, so he does not want his whole song to be bajaufied anywhere, and he just want to give the copyright of let's say first para. That's it. So वो होली भी हो सकता है, पार्टली भी हो सकता है. ठीक है, समझ आ रहा है. प्रोवाइडेड असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट इन फ्यूचर वर्क. अगर आपको फ्यूचर वर्क का असाइनमेंट करना है तो यू हैव टू मेक श्योर दैट द असाइनमेंट शैल टेक इफेक्ट ओनली व्हेन द वर्क कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. मतलब आप ट्रांसफ़र तभी कर सकते हो जब आपका काम सामने हो. कोई फ्यूचर वर्क का आप असाइनमेंट कर रहे हो
तो मेक श्योर अब इसमें एग्जांपल क्या दे सकते हो, असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट इन फ्यूचर वर्क, कोई फ्यूचर में फिल्म बनने वाली है लेट्स से 3 या 4 साल के बाद, अब आपको असाइनमेंट करना है कॉपीराइट इन एनी फ्यूचर वर्क, द असाइनमेंट शैल टेक इफेक्ट ओनली व्हेन द तो असाइनमेंट शैल टेक इफेक्ट, तो ये असाइनमेंट का इफेक्ट कब से होगा, असाइनमेंट का इफेक्ट कब से होगा, व्हेन द वर्क कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। नो सच असाइनमेंट शैल बी एप्लीकेबल टू एनी मोड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्क, तो कोई भी असाइनमेंट शैल बी नो सच असाइनमेंट, ये जो आप असाइनमेंट कर रहे हो, जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हो अपने कॉपीराइट का, ये जो आप अपना असाइनमेंट कर रहे हो अपने कॉपीराइट का, नो सच असाइनमेंट शैल बी अप्लाइड टू एनी मोड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्क विच इज़ नॉट एग्जिस्ट, और मतलब ऐसा कोई काम आप कर रहे हो उस पर्टिकुलर कॉपीराइट से जो कि उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं थी या फिर कमर्शियल यूज़ में नहीं थी, व्हेन द असाइनमेंट वाज मेड, जब वो असाइनमेंट हुआ था, अनलेस द असाइनमेंट स्पेसिफिकली रिफर टू सच मीडियम और मोड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्क, अनलेस द असाइनमेंट स्पेसिफिकली रिफर टू सच मीडियम, या फिर मतलब एक्सप्रेसली बताया है कि ये एक्सप्लॉयटेशन होगा, इस तरह से होगा इस काम का, तो अगर नहीं बताया है तो नहीं होगा, बताया है एक्सप्रेस किया है तो होगा। आई होप इट्स अंडरस्टूड। देन इट सेज दैट ऑथर ऑफ द लिटरेरी और म्यूजिकल वर्क, जो ऑथर है ऑथर ऑफ द लिटरेरी और म्यूजिकल वर्क इंक्लूडेड इन अ सिनेमेटोग्राफ फिल्म, तो बेसिकली दिस इज टॉकिंग अबाउट सिनेमेटोग्राफ फिल्म, कि फिल्म में जब ऑथर या फिर ऑथर जो कि स्टोरी राइटर होता है ऑफ द लिटरेरी या फिर म्यूजिकल वर्क अगर कुछ इंक्लूड है, तो दैट शैल नॉट वेव द राइट टू रिसीव रॉयल्टीज टू बी शेयर्ड ऑन एन इक्वल बेसिस, कि उनको भी राइट है कि उनको वेव नहीं करना है, राइट टू रिसीव रॉयल, मतलब बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि लेट्स से कोई फिल्म बनी है, उसमें आपका कोई आर्टिस्टिक वर्क है, ऑथर वाला वर्क है, म्यूजिकल वर्क है सिनेमेटोग्राफ फिल्म में, तो आप शेल नॉट वेव द राइट टू रिसीव रॉयल्टीज़, तो आपको रॉयल्टीज़ तो मिलेगी, वो वेव ऑफ करने का कोई होशियारी बनता नहीं है, या फिर यू कैन नॉट, मतलब नो बडी कैन फोर्स यू टू वेव दैट राइट ऑफ because just because that is being included in the movie, so shall not waive the right to receive royalties to be shared on an equal basis with the assignee of copyright and for utilization of such work, जब जब वो वर्क यूटिलाइज होगा, डाउनलोड होगा, आगे जैसे भी चीज़ें होंगी उसके साथ जो भी फॉर्म में होगा, तो उसके साथ साथ आपको रॉयल्टी मिलती जाएगी। ओके फिर बोल रहा है फ्रॉम अदर देन फॉर कम्युनिकेशन टू द पब्लिक ऑफ द वर्क, कि पब्लिक को जब आप वर्क कम्युनिकेट कर रहे हो तब को छोड़ के, फिर अलॉन्ग विद सिनेमेटोग्राफर इन सिनेमा हॉल एक्सेप्ट टू द लीगल हेयर्स ऑफ ऑथर्स टू अ कॉपीराइट सोसाइटी फॉर कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी एग्रीमेंट ऑफ टू कॉन्ट्ररी शैल बी वॉइड, मतलब एक्सेप्ट टू द लीगल हेयर्स ऑफ द ऑथर्स, मतलब लीगल हेयर्स ऑफ द ऑथर्स को छोड़ के टू अ कॉपीराइट society for a collection and distribution of any agreement contrary, इसके अलावा कुछ है contrary है तो that shall be void। फिर है author of the literary और musical work, ऑथर किसका है, लिटरेरी है या फिर म्यूजिकल वर्क का है, लेकिन वो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म में इंक्लूडेड नहीं है यहाँ पे, दैट इज बीन इंक्लूडेड इन साउंड रिकॉर्डिंग बट नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सिनेमेटोग्राफ फिल्म, shall not waive the right to receive royalties to be shared on an equal basis with assignee of the copyright for any utilization of such work except to the legal heirs of the authors or to collecting society for collection and distribution of any assignment to the contrary shall be void। सेम लाइन है कि भाई अगर आप सिनेमेटोग्राफ फिल्म में हैं तो आप वेव मत करो, आप साउंड रिकॉर्डिंग में भी हो, आप सिनेमेटोग्राफ फिल्म में नहीं हो, आप साउंड रिकॉर्डिंग में भी हो, तो भी अपना राइट टू रिसीव रॉयल्टी वेव ऑफ मत करो। where the assignee of copyright becomes entitled to any right, जब where the assignee of copyright, assigner कौन होता है, assignee कौन होता है, assigner जो अपना right दे रहा है, assignee जो right ले रही है, तो where the assignee of copyright जिसने right लिया है becomes entitled to any right, उसको कोई right मिलना चाहिए, comprise in the copyright the assignee as respects the right so assigned and the मतलब कि basically ये क्या बोलने की कोशिश करा देखना यहाँ पे, where the assignee of the copyright becomes entitled to any right comprised in the copyright, the assignee has respect the right so assigned, मतलब कि किसका किसका राइट कॉपीराइट के अंडर आएगा, तो अगर लेट्स से एंड द असाइनर एज रिस्पेक्ट्स द राइट नॉट असाइंड, तो बेसिकली असाइनी को जो राइट असाइंड हुए हैं और असाइनर ने जो राइट असाइन नहीं किए हैं, तो शैल बी ट्रीटेड फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट एज द ओनर ऑफ कॉपीराइट। तो बेसिकली आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ओवर हियर, क्या बोलने की कोशिश हो रही है कि असाइनी ऑफ कॉपीराइट, तो लेट्स से एक बुक है
no one can win the unexpected, let's say कोई भी book है, expected the sorry, I'm so bad in this. Expected the unexpected. चलो ये book हो गई, ठीक है. Where the assignee of the copyright becomes entitled to any right. So let's say I have made this book, expected the unexpected, expected the unexpected. I have made this book, and I am the assigner, and you all are guys are the assignee. So where the assignee of copyright, so now you are assignee of copyright becomes entitled to any right. So now you are entitled to the right of my book, right? Comprised in the copyright. The assignee as respects the rights so assigned. So basically मैंने क्या बोला, expect the unexpected. जो book मैंने बनाई है उसमें total 21 chapters है, जिसमें से मैं 19 चैप्टर्स को तो कॉपीराइट दे रही हूँ आपका, बाकी के 2 चैप्टर्स का कॉपीराइट मैं आपको नहीं दे रही हूँ. सो डिड यू अंडरस्टैंड दैट कि वो 19 चैप्टर्स में से 17 चैप्टर्स के लिए आप कॉपीराइट के अंडर आओगे, और जो बाकी 2 बचे चैप्टर्स हैं उनके लिए मैं आऊँगी कॉपीराइट के अंडर, मतलब मैं ओनर होंगी उस पर्टिकुलर चीज़ की. चलो, मोड ऑफ असाइनमेंट सेक्शन 19. तो मोड ऑफ असाइनमेंट वुड ऑलवेज बी इन राइटिंग. जब आप ट्रांसफर कर रहे हो असाइनमेंट तो राइटिंग में करना पड़ेगा, साइंड होगा बाय द असाइनर या फिर ऑथोराइज्ड एजेंट ऑफ द असाइनर. सो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड अवर टॉपिक विच इज असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट. If you have got any doubt, you can comment down below, and don't forget to subscribe my channel for all such informative video and knowledgeable video. All right, thank you for everyone your support.